Welcome, students. Welcome to Shriram IAS YT channel. In this Geography Explain series, today is the day of types of glacial landforms. This is the topic we are going to discuss today. In the last topic, we discussed the type of landforms created by rivers and stream, and it was called fluvial landforms. Today, we will discuss the glacial landforms. The glaciers, when they create landforms through erosional processes and depositional processes. So this is the topic of today's lecture. We shall start, and first of all we should know कि landform क्या होता है. Landforms are specific features on Earth's crust which are being made through geomorphic processes like deposition, like erosion. These are the external processes. Internal में हम टेक्टोनिक एक्टिविटीज, सीस्मिक एक्टिविटीज इनके बारे में बात करते हैं, बट फ्रॉम द आउटसाइड द फैक्टर्स, द प्रोसेसेस व्हिच इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द लैंडफॉर्म्स, उनमें प्राइमरली इरोजन और डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं. तो ग्लेशियर्स, द monuments, or in a way these are the massive monuments of ice. This is how you can describe the glaciers. These are gigantic tons and tons of ice accumulated over a period of time, and it slowly moves. When it slowly moves, obviously it will erode the surface on which it is moving, the rock foundation on which it is moving. It will erode them, and also it will carry a lot of sand, it will carry a lot of gravel, rock particles, and it will deposit along the way. तो जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं, वो दो टाइप के होते हैं. इनमें पहला होता है इरोजनल लैंडफॉर्म, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे. इरोजनल लैंडफॉर्म मींस व्हाट? दे आर इरोडिंग the rock surfaces, the underlying material. In this case, we should start with Sarki. This is what? It's a bowl-shaped feature. It's a bowl-shaped landform. Because of the weight of the glacier, this area will start hollowing out. ये hollow out होना शुरू होगा because of the weight of the glacier. अब धीरे धीरे जैसे एक मूविंग चेयर होती है, उसका जो शेप होता है, उस शेप में ये आ जाएगा. इसे हम बोलेंगे सरकी. When the glacier will melt, and there will be, obviously when the ice melts, there is a lot of water, और ये water इस area में कई बार भर जाता है. It occupies this hollow depression and we will call it tarn. These are difficult names assigned to very simple issues. ये बहुत ही simple issues हैं जिनको difficult sometimes technical names दिए जाते हैं. तो सरकी ये होता है, tarn हम लेक इसे कहते हैं. Now when the sark in a way will erode, there are two cirques around the way and they will erode from the respective areas. यहाँ पे एक रीति create हो जाएगा. These are the sharp edges created by two cirques in that area, और इसे हम बोलेंगे रीति. Then we will have, if it is being, the entire hill structure is being eroded from the three sides by the cirque, उसे हम बोलेंगे हॉर्न. एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट होता है जब तीन डायरेक्शन से जो सर्क होता है ये इरोड करता है स्ट्रक्चर को. So that is how it is being formed. There are many subsidiary glaciers also on the mountains which will join the main glacier. ठीक वैसे ही जैसे रिवर्स होती हैं और वो ज्वाइन करती हैं मेन रिवर को, ऐसे ही यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं. जब ये ग्लेशियर्स आते हैं अपने साथ a lot of ice, sand, gravel they will bring along, and then they will join the main glacier. तो उसे हम बोलते हैं हैंगिंग वैली, बिकॉज मेन जो ग्लेशियर है वो काफी हैवी वहां पे होगा. आइस का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा है. इट विल इरोड फार डीपर. तो जब वो इरोड कर देगा फार डीपर, तो वो obviously if it is eroding far deeper and the subsidiary glacier will not erode that deeper because वहां पे वो जो ग्लेशियर है उसका साइज छोटा है, तो ऐसा लगेगा कि जो वैली क्रिएट की है इस सब्सिडरी ग्लेशियर ने, इट इज रेस्टिंग अबव द मेन वैली. उसे हम बोलेंगे हैंगिंग वैली. सब्सिडरी ग्लेशियर से बनती है. एंड देन a very dominant valley in the features is U-shaped valley. This is a normal V-shaped river valley. जैसे ग्लेशियर ने जब वो ग्लेशियर मूव किया यहां से, तो स्लोली एंड स्टडली इट हैज इरोडेड इट डीपर, और यहाँ पे ये स्टीप वर्टिकल वॉल्स क्रिएट हो जाएंगी और जो शेप है वो यू शेप्ड हो जाएगा. इसे हम बोलते हैं
यू शेप्ड वैली। फॉर्मरली पहले ये वी शेप्ड वैली थी, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ग्लेशियर इट गॉट इरोडेड फर्दर और ये यू शेप्ड वैली में कन्वर्ट हो गई। इसके ऊपर जो सब्सिडरी ग्लेशियर यहां से आ रहा है, अपने साथ मटेरियल लेके आ रहा है, इट विल लुक लाइक इट इज हैंगिंग अबव दिस मेन वैली, इसे हम हैंगिंग वैली कहेंगे। एंड दैट इज हाउ वी डिस्क्राइब द सर्क, द टान, द हॉर्न एक्सेट्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ऐसा ही एक फीचर, इरोजनल फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं रॉड। दिस इज नथिंग बट ए यू शेप्ड वैली। एज यू कैन सी दिस इज ए यू शेप्ड वैली, जो यहाँ पे वैली दिखाई दे रही है। इन मेनी एरियाज इन द आर्कटिक एरिया, फॉर एग्जांपल नॉर्वे जैसे देशों में, ये जो यू शेप्ड वैली बनती है, दे आर नियर द सी लेवल। हिमालयाज में पॉसिबल नहीं है बिकॉज देर आर नो सी सराउंडिंग हिमालयाज, बट इन नॉर्वे आर्कटिक एरियाज में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ भी जाएं तो न्यूजीलैंड के एरिया में, जहां पे ऐसे ग्लेशियर्स होते हैं, यू शेप्ड वैलीज होती हैं, वहां पे ये सी सरफेस के लेवल पे होती हैं, तो कई बार यहाँ पानी भर जाता है, जैसे ये द वाटर इज बीइंग फिलिंग दिस डिप्रेशन, इसे हम बोलेंगे जॉर्ड। दिस इज ऑल्सो ए इरोजनल लैंडफॉर्म। इरोजन क्योंकि इरोड कर रहा है सरफेस को ग्लेशियर। ऐसे ही डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं जो ग्लेशियर बनाता है, बिकॉज ग्लेशियर इज मूविंग along with, slowly it is moving, but it is carrying a lot of ice, it is carrying a lot of rock material which has eroded, a lot of sand, a lot of gravel etc, और आगे जाके ये डिपॉजिट करेगा उनको। जैसे मोरेन्स, मोरेन आर ए वेरी इंटरेस्टिंग इशू। तो मोरेन को पहले हम समझते हैं। These are the gravels, the rock material which the glacier is bringing along, उससे हम बोलते हैं मोरेन। इसके टाइप्स होते हैं, जैसे लेटरल मोरेन। लेटरल मोरेन क्या होता है? लेटरल मोरेन इज द मोरेन बेसिकली विच इज एट द साइड्स ऑफ द ग्लेशियर। ये साइड्स पे होते हैं ग्लेशियर के, ग्लेशियर की जो बाउंड्री होती है वहां पे दिखाई देंगे, इनको हम लेटरल मोरेन कहते हैं। जो मैक्सिमम एक्सटेंट होगा ग्लेशियर का, जहां तक ग्लेशियर जा रहा है और वहां पे जो ग्रेवल डिपॉजिट होगा, उसको बोलेंगे टर्मिनल मोरेन। जब दो लेटरल मोरेन मिलेंगे, देयर आर टू डिफरेंट ग्लेशियर्स, दे आर मीटिंग, तो उनकी बाउंड्री विल मीट, और जो लेटरल मोरेन होगा वो मीट होगा, और उसे हम बोलेंगे मेडियल मोरेन। और एज इफ ऐसा एक रिज जो है इन दो ग्लेशियर्स के बीच में क्रिएट हो जाएगा, इसे बोलते हैं मोरेन। दैट इज समथिंग विच वी कॉल मोरेन। नाउ वन मोर, देयर आर मेनी फीचर्स हियर वी विल टॉक अबाउट, जैसे ग्राउंड मोरेन। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोरेन। It will flatten out, the gravel will flatten out over the large surface, जिसे हम बोलेंगे ग्राउंड मोरेन। Then within the glaciers there will be melting of the ice, और small streams create हो जाती हैं, generate होती हैं। They will also deposit the sand material, the rock material along the way, और ऐसा snake like structure होता है जिसे हम बोलते हैं इस्कर। snake like structure है बिकॉज इट इज बीनीथ द ग्लेशियर। कई बार ये किलोमीटर्स किलोमीटर्स लॉन्ग होते हैं, कितने लंबे भी होते हैं कई बार। देन यू हैव द outwash plain. When the glacier will melt, the water will carry the sand and the gravel along the way, और यहां पे आगे लाके डिपॉजिट कर देगा, उसको बोलेंगे outwash plain। outwash plain उसको कहेंगे। then you have kettle lake, a very interesting feature। many a times some part of the glacier will be cut off from the main glacier। जब वहां पे, जब वो कट ऑफ हो जाएगा, बिकॉज द वेट ऑफ द आइस इज सो ह्यूज, इट विल इरोड द सरफेस, थोड़ा एक छोटा डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा वहां पे। एंड व्हेन द ग्लेशियर विल मेल्ट, वहां पे पानी भर जाएगा, द वाटर विल फिल द डिप्रेशन एंड वी विल कॉल इट केटल लेक। सी सिंपल इश्यूज, कॉम्प्लिकेटेड yet difficult या sometimes technical vocabulary। ड्रमलिन फील्ड इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। दीज आर ओवल शेप्ड, एज इफ कैसे कोई एग है, उसको बरी कर दिया गया है सरफेस में, तो दीज आर सैंड्स एंड ग्रेवल ओनली विच आर बरीड इन दैट वे, तो इसे हम बोलेंगे ड्रमलिन फील्ड। ड्रमलिन फील्ड इसे हम कहेंगे। तो जो मोरेन है, जो स्कर्स हैं, जो केटल लेक है, ड्रमलिन फील्ड है, these things, these are depositional features, depositional landforms created by a retreating glacier। Glaciers are very significant for global climate management, fresh water supply, sea, जो sea level है rise के लिए उसके लिए responsible है, and many a times in geography, particularly for UPSC civil service examination, prelims at least, they can ask questions related to these kind of topics।
मेंस में भी उन्होंने सवाल पूछे हैं, प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे गए हैं। ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही सिंपल हैं, येट आई फाइंड दैट मेनी एस्पिरेंट्स they find it difficult because there are so much of technicalities. Nothing to worry about. Just understand in simple language, write in simple language, the job will be done. So this is in a way the moraines and the other depositional features. So there are erosional landforms and depositional landforms created by the glaciers. The same way it was with the rivers and streams. Thank you.